A very good evening, ladies. I hope you guys are all doing good. A digital hi to everyone. I would request you all to start your videos. I can already see some lovely faces across the screen. Love the prep and the excitement. I think it exuberates through the screen. And of course, how many days are left for the finale now? Come on. I think अब तो fingers पे भी बताया जा सकता है. Great. So the countdown has started. Now, we can officially get to counting days on our fingers, which is great because 17th is when we start with the event. And it's going to be, one of the biggest events of the country. And this is not just what I am saying. This is not just what you guys have been asked to believe into, but this is what, the entire country has believed into, because I'm sure you guys must have been going through the media coverage, the intense media coverage Forever Star India has been receiving. And all the mileage that we have been receiving for that matter, and it's all because of you guys, the effort that you all have put into it. And this is what you represent. FCA is equal to its community members, which is all you beautiful lovely ladies. So I welcome you all to a very, very special session. Of course, our founder CEO Rajesh sir would be taking over really soon, but I just wanted to go through the glimpse of what how much appreciation we have received from the media. And this is the exactly same media who is waiting now, excited to see you guys all, because हम तो back end पे हैं, लेकिन आप लोग FCA का face हो. And the team is very, very happy, delighted, and of course proud of each of its member for maintaining the belief in us, and of course surviving it all. So congratulations. Today आज का session is going to be very special because of course again अब तो सिर्फ winners ही होते हैं जो दिखते हैं आसपास, अपने अपने level पे. You guys are going to represent your city, state, and of course for that matter there are going to be few ladies who are going to take away the national crown as well. So the excitement is just increasing every day because there is a lot to do. Of course there is a big responsibility that comes along with it, and the team is very, very excited because Marriott is all set. Now it's all yours to take over. So give me a thumbs up if I'm audible properly and if we are all set for the session. So I would first request you all to take down, take up a notepad and pen handy as always, because there would be some important points. Because now, of course, if there is a countdown, it also means कि अब बहुत कुछ समझना और बहुत सारी responsibilities को handle करना आपकी जिम्मेदारी है. So far, it has been the team on the other end, but when you become the face of FCA, you take over the responsibilities from us, because now you're going to represent your city, your state at a national level, which is not just a fancy tag. It's a big, big responsibility and accountability for that matter. वहां पे कोई नहीं पूछेगा कि project coordinator कौन है, director कौन है. It's all going to be about who is the winner of Mumbai, who is the winner of Hyderabad, all about that, and that is all you guys. So I am sure you guys understand that what kind of intense responsibility that comes along with it. So now let's not delay the process any further. I would really like to invite the CEO and founder, Mr. Rajesh Agarwal, to take over and have a one-on-one word with you guys. Rajesh sir, welcome on board, please. गुड इवनिंग हैरी, थैंक यू. गुड इवनिंग सभी के सभी विनर्स, सारे के सारे बहुत ही खूबसूरत चेहरे, इंडिया के सबसे बड़े कॉन्टेस्ट के विनर्स. सब कैसे हैं? परफेक्ट. और कितने दिन बचे हुए हैं अब आपके विनिंग के क्राउन को लेकर के आप सब मीडिया के सामने आएंगे? वेरी गुड, वेरी गुड. तो आज का सेशन हैरी ने वैसे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, और 16-17 मेजर पॉइंट्स है जिस पे आज अगर डिस्कस करेंगे. तो आज एक छोटी सी टीम इसमें आई है जिसमें 70-75 मेंबर्स हैं. होपफुली परसों एक और करेंगे जिसके अंदर सारे विनर्स कंप्लीट कवर कर पाए. तो कुछ मेजर पॉइंट्स है, जैसा बहुत सारे लोगों का सवाल कोविड को लेकर के बहुत कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है. तो मैं आप सभी को क्लियर करना चाहता हूं कि 1% भी चिंता की कोई बात नहीं है, लेकिन सावधानी रखना हम सबका काम है. RT-PCR की रिपोर्ट जरूर अपने साथ रखें. वैक्सीनेशन आपने जो कंप्लीट किया है उसकी रिपोर्ट, उसका कहीं भी डिटेल के अंदर कोई क्वेश्चन नहीं करे तो उसके लिए आपके पास में आंसर होना चाहिए. और जयपुर में ऑलरेडी सिचुएशन सारी अंडर कंट्रोल है, ऐसा कोई इशू नहीं है कि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है.
इसलिए इवेंट ऑलरेडी बहुत अच्छे तरीके से होने जा रहा है, इसलिए कोई कंफ्यूजन आप लोग कोई भी क्रिएट ना रखें, दिमाग में लाए ना। राइट, परफेक्ट है। कोविड से रिलेटेड किसी के मन में भी अगर कोई और सवाल है तो इसको भी खत्म करते हैं, क्लियर करते हैं, डिस्कस करते हैं और क्लोज करते हैं। बताइए, किसी के पास कोई सवाल है कोविड से रिलेटेड? आई होप किसी के पास नहीं है हैरी, तो ये पॉइंट तो हो गया क्लोज। जी सर। ओके, तो जया जी अब आपके पास में इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस नहीं आएंगे? आई होप कि ये जो 70 मेंबर्स है वो तो नहीं करेंगे। यस सर, आपने सब क्लियर कर दिए। ठीक है, इसके बाद मेजर आपको मैं सबसे मेजर पॉइंट्स हैं, जैसे कि हेयर एंड थ्रेडिंग के लिए हैरी या जया आपको एक्सप्लेन करेगी कि इसके लिए आपको क्या प्रोसेस करके आना है। तो जया या हैरी या कीर्ति जी बताइए, आप में से कौन इनको क्लियर करेंगे? हेयर सर मैं कर लेती हूँ, कोई इश्यूज नहीं है। सो पर्सनल ग्रूमिंग इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। यू कमिंग हियर फॉर अ डे, 2 days, 3 days, whatever your respective time period is. So please make sure आपका हेयर स्पा, आपका जो सैलून का वो जो इंटरेक्शन है वो कंप्लीट हो, योर थ्रेडिंग एंड एवरीथिंग, बिकॉज ये चीजें हैं जो आप यहाँ पे आके हैंडल नहीं कर सकते। इतने आप लोग ऑलरेडी मैच्योर हो, बट वी आर जस्ट पुटिंग इट फॉरवर्ड ताकि यू ऑल्सो अंडरस्टैंड, बिकॉज ये बेसिक एक्सपेक्टेशन है। दिस कम्स इनटू पर्सनल हाइजीन, पर्सनल ग्रूमिंग, और ये पर्सनल लेवल पे ही की जाती है। इट इंक्लूड्स योर थ्रेडिंग, योर वैक्सिंग एंड द राइट काइंड ऑफ कैरिंग द राइट काइंड ऑफ हेयर अलोंग, so that there is no last minute fuss that gets created, because makeup artists and the professionals who will be working with you are going to be experts from their respective fields, and they also deserve to be working with women who are mature enough and capable to handle such big responsibilities, because ab aap you're not coming as a contestant anymore. When you come as a winner, you need to look like a winner, you need to perform like a winner. So sir, I hope this ye point cover ho gaya ho. किसी के पास भी इससे रिलेटेड कोई सवाल है जिसको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है तो उसको क्लियर कर लिया जाए। अगर कोई है सवाल किसी के मन में भी, एकदम बिंदास आप पूछ सकते हैं कि हाँ हमारे पास में इससे रिलेटेड ये सवाल है। कोई भी नहीं है? ओके, डन, ठीक है। हैरी, इसके बाद में एक हिल की प्रैक्टिस का पार्ट है, क्योंकि जब ये सभी कैंडिडेट, आप सभी विनर जब स्टेज पे हो एंड आपकी जब क्राउनिंग हो रही है तो आपको हिल की प्रैक्टिस की नीड होगी। तो ये प्रैक्टिस आप घर से करके आए और अपने साथ में 2 हिल कैरी करें। इन केस बाई चांस अगर एक हिल डैमेज हो गई तो आपके पास में दूसरी हिल हो, क्योंकि किसी और की हिल पे चलना बहुत टफ होता है और उस समय पे नर्वसनेस आ जाती है। इसलिए इसको प्रैक्टिस का पार्ट अपने आप बनाएं, जिससे मीडिया के सामने भी जब आप वॉक कर रहे हैं, क्योंकि आपकी कवरेज एक जगह पे नहीं होगी, आपकी क्राउनिंग के टाइम पे अलग कवरेज है, क्राउनिंग के जस्ट बाद में अलग अलग बॉक्सेस बने हैं, वहां आपकी कवरेज अलग है, वहां भी आपको थोड़ा सा वॉक करना पड़ेगा उसी ड्रेस के अंदर। तो आपकी जितनी ज्यादा फोटोग्राफी हो पाएगी उतना आपके लिए, और जो हमारा सेलिब्रिटी पेज बना है उसके ऊपर अच्छे से लिस्टिंग और पोस्टिंग हो पाएगी। तो ये प्रैक्टिस का पार्ट है, इसे आप जरूर अच्छे से फॉलो करें। अगर इससे रिलेटेड कोई है तो यहाँ पे अभी ट्रेनर्स भी हैं, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि उनसे किस तरीके से आपको ट्रेनिंग लेने की आवश्यकता बची है। सर मैं इसमें एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगी। सो काफी लोगों के सवाल जया के पास या कीर्ति मैम के पास आते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ हील्स दैट। स्टेलेटोस तो आप सबको पता ही, ट्रेनिंग के टाइम बताया गया, बट जो हमारा कुटियोर गाउन्स का कलर पैलेट रहेगा वो न्यूट्रल शेड्स रहेगा। वी आर नॉट गोइंग बोल्ड्स विद रेड्स एंड ऑल ऑफ दैट। सो इसीलिए मैंने पर्सनली जितनों से भी मेरी बात हुई है, बट आई एम putting this out in open, that prefer subtle colors in your heels also. Try nude, blush pink, जो classic color होता है जो सबके साथ जाए. And if you're carrying 2 heels, the alternate should be a good black heel. So these are 2 classic pairs that you need to understand. And क्योंकि जो colors of the gowns हैं वो हमारे neutral palette ही रहेगा, the beige, the gold, the silvers, तो ये classic shades रहने वाले हैं, nothing on the darker tones. ओके, डन है, सबके लिए परफेक्ट हो गया, क्लियर सब कुछ? ओके, ठीक है। सॉरी, एस्ट्रोलॉजिकल भी आज टिप्स की बात हुई है। अगर किसी के सवाल है तो बीच में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। अगर किसी को लगता है कि कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, यस रोशनी प्लीज 2 मिनट, मैं तो कंप्लीट कर दूं, तुम तो पहले से तैयार हो। तो बीच में भी हम उसका भी चांस लेंगे और उसकी स्केचिंग करके उसको भी क्लियर करेंगे। तो काफी लोगों के सवाल बीच में रह गए थे लास्ट टाइम, तो अभी उसको कोशिश करेंगे कि अभी क्लोज कर सके। इसके पहले सबसे मेजर एक चीज है कि जो शेड्यूल आप लोगों के लिए रेडी किया गया है, यानी कि मॉर्निंग 6 o'clock से आपका शेड्यूल रेडी किया गया है, जो आपके अकाउंट मैनेजर के थ्रू आपको 10 तारीख या 12 तारीख तक अपडेट हो जाएगा। उस शेड्यूल के अंदर आपको क्लियर करने का मेरा पर्पस ये है कि अगर आप उसे फॉलो नहीं करेंगे, 25 से 30 लोग एक सिंगल बैच में होंगे,
अगर आप उसे फॉलो नहीं करते हो, कहीं मिसिंग कर देते हो, तो वो पूरा की पूरा ग्रुप इनबैलेंस हो जाएगा, उसके शूट्स अटक जाएंगे बीच में, क्योंकि वो सब टाइम की पंक्चुअलिटी के हिसाब से है। और इसी में से हमने इंटरव्यू का टाइम एंड वीडियो सॉन्ग को शूट करने का टाइम निकाला गया है कि जो लोग डांस की प्रैक्टिस प्रॉपर करके आएंगे वो लोग सॉन्ग में शामिल हो सकेंगे। सॉन्ग मतलब फर्स्ट टाइम ऐसा होगा कि हाथों हाथ आपके विनिंग से पहले या विनिंग के बाद में आपको टीवी स्क्रीन पे ला दिया जाएगा। तो उसके लिए टाइम बहुत जरूरी है, हमें एक एक टाइम का इस्तेमाल करना। तो प्लीज आप सभी लोग टाइम की पंक्चुअलिटी को जरूर वहां जितने दिन भी हैं अच्छे से समझें और उसे फॉलो करें। कहीं कोई मिसमैच एक जने की कईयों को तकलीफ दे सकती है, उसमें टाइम वापस नहीं लाया जा सकता, जो समय बीत जाएगा वो लौट के नहीं आएगा। तो उसको पूरा यूटिलाइज करें और बहुत पेशेंस से कूल होके करें। साथ ही साथ अपने जब यहाँ पहुंच रहे हैं तो जयपुर में इतनी ठंड नहीं होती, बट फिर भी अपने डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करके पैरासीटामोल जैसी दवाइयाँ अपने साथ रखें कि अगर इन केस कोई कोल्ड हो जाता है तो आपको जयपुर से किसी मेडिसिन की नीड ना हो। तो सेफ पार्ट के लिए आप कुछ मेडिसिन अपने पर्सनल डॉक्टर से लेके रखें। राइट है? परफेक्ट, ठीक है। कुछ ड्रेसेस आपके पोर्टफोलियो के लिए आप खुद कैरी करें, जिसके लिए डिटेल हैरी या कीर्ति जी बताते हैं। कीर्ति जी प्लीज आप एक्सप्लेन कर दें कि ड्रेसेस इनको जो कैरी करनी है शूट्स कैसे हैं। जया कुछ इमेजेस बताना जो पोर्टफोलियो बेटर टू बेटर इनका बन सके और बहुत फास्टली बन सके। पर्सनल जो लाइट वेट ड्रेसेस है वो कैसे कैरी करनी है, एक बार प्लीज एक्सप्लेन कर दें। Okay, sir. Hello, ladies. A very good evening to all of you. आज के जो सेशन है इसके बारे में बात तो कर ही रहे हैं सर भी काफी देर से, एंड हैरी भी आपको सारी डिटेल्स दे चुकी हैं, बट आई जस्ट वांट टू टेल यू दैट यू हैव टू कम हियर विद अ टीम स्पिरिट। जो हम आपके ग्रुप्स बनाने वाले हैं 15, 20, 25 कैंडिडेट्स के, सो यू हैव टू कंसिडर योरसेल्फ अ टीम। आपका जो टीम लीडर होगा जो कोऑर्डिनेट करेगा आपके साथ, यू विल एक्चुअली बी लुकिंग अप टू हर, शी विल बी हैंडलिंग एवरीथिंग। उनके पास अथॉरिटी होगा, सो व्हाटएवर शी सेज, व्हाटएवर द शेड्यूल शी एक्सप्लेन्स टू यू, यू हैव टू अबाइड बाय इट during the whole event that you're staying here at Hotel Marriott. Secondly, जो सर ने अभी मेंशन किया कि पोर्टफोलियो शूट्स यहाँ पे आपके होंगे, जो आपको ऑलरेडी पता है कि आपकी जब क्राउनिंग होती है उसके बाद आपका पोर्टफोलियो शूट होगा, जिसके लिए आपके अलग से अटायर्स होंगे, बट एज अ नेसेसिटी यू हैव टू ब्रिंग some light dresses along with you. उन ड्रेसेस में आप वन पीस ड्रेसेस कैरी कर सकते हैं जो कि लाइट वेट होंगी. You can carry a few casual t-shirts, tops, ब्लेजर्स, शॉर्ट्स, मतलब जिनमें आप सबसे ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं, इस तरह की क्लोथिंग आप अपने साथ कैरी कर सकते हैं, सो दैट लास्ट मोमेंट पे अगर आपको लगता है कि इस ड्रेस में आप कंफर्टेबल नहीं है तो उन ड्रेसेस को यूज करके हम आपका पोर्टफोलियो शूट करेंगे. नाउ दीज आर द पिक्चर्स दैट यू कैन सी ऑन स्क्रीन, and this portfolio shoot is extremely important for each one of you who's coming here for the grand finale, क्योंकि ये इवेंट तो हो जाएगा 4 दिन में, दिस इवेंट विल बी डन, बट आफ्टर दीज 4 days व्हाट नेक्स्ट? आपके पोर्टफोलियो एंड कैटलॉग शूट की पिक्चर्स को हम यूज करके वी आर एक्चुअली गोइंग टू प्रमोट यू एज अ सेलिब्रिटी, एज एन ऑफिशियल सेलिब्रिटी ऑफ फॉरएवर स्टार इंडिया. So you are not going to take these shoots lightly कि मेरी तो क्राउनिंग हो चुकी है, now there's nothing left for me. क्राउनिंग से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो फेज है वो आपके लिए पोर्टफोलियो शूट का होगा, ताकि पोर्टफोलियो शूट में आप कितने अच्छे तरीके से खुद को कैरी कर रहे हैं, how graceful you are looking, that will actually decide the future course of action for you on this community, on this platform. So have a better look at these pictures and plan it ahead. Last moment पे आप नहीं decide करोगे कि मुझे क्या लेके जाना है. That is why सर ने ये जो पॉइंटर है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंटर आज आपको नोट करवाया है कि आज से ही यू स्टार्ट प्लानिंग. एंड बहुत ही स्पेशल इसके लिए कुछ आपको शॉपिंग करने की जरूरत नहीं है. व्हाटएवर यू हैव इन योर वार्डरोब, यू कैन एक्चुअली लुक आउट फॉर समथिंग कंस्ट्रक्टिव देयर ओनली. राइट सर? इसके अलावा कुछ और? कीर्ति जी, इसमें बहुत एक मेजर पॉइंट है कि जैसे सेलिब्रिटी गेस्ट का जो पार्ट है, हम लोग आपकी जो लिस्टिंग करने जा रहे हैं पोर्टफोलियो के साथ में, तो पहली पिक्चर आपकी होगी क्राउन के साथ. सेलिब्रिटी गेस्ट का एक लिंक हमने ऑलरेडी वेबसाइट पे बनाया है, जो पीआर एजेंसी पूरे इंडिया की एफसीआ की टीम हैंडल करेगी. बट डायरेक्टली भी आपका पोर्टफोलियो वहां पे जिस तरीके से होगा और ईमेल आईडी होगी, लोग डायरेक्टली भी आपसे टच कर सकते हैं. ये सब इसलिए बनाया जा रहा है, ये रूल एंड रेगुलेशंस पॉलिसीज इसलिए क्रिएट की गई थी कि पहली बार जैसे ही आप क्राउन होल्डर होते हैं, अपनी सिटी या स्टेट के विनर होते हैं, तो इंस्टेंटली आप सेलिब्रिटी गेस्ट की लिस्ट में पब्लिकली आ जाते हैं. पब्लिकली ऐसा आने पे क्या होगा
कि लोग आपको चीफ गेस्ट, स्पेशल गेस्ट या सेलिब्रिटी गेस्ट के तौर पे इनवाइट करना शुरू करेंगे। एंड ये सब कुछ पेड होगा, ये आप लोगों को कहीं पर जाकर के, अब आपको पैसा नहीं लगाना कहीं भी किसी भी तरीके का। बट अगर ऐसा आप चाहते हैं कि ये परफेक्टली हो, तो उसके लिए कुछ ड्रेसेस आप अच्छे से अपने साथ में कैरी करें जिससे कि शूट परफेक्टली हो सके। और कुछ ड्रेसेस आपके सॉन्ग के लिए, जो सॉन्ग में रिलीज होना चाहते हैं, टीवी पे आना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए ये बहुत ही एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, टाइम का इस्तेमाल करते हुए उसमें शॉर्ट क्लिप्स में भी आए। एंड एक बहुत अच्छी न्यूज़ है जो मुझे आज ही पता पड़ी है कि ऑलरेडी iTunes पे हमने जो सॉन्ग रिलीज किया था वो आ चुका है, और लगभग 150 चैनल्स के ऊपर ये सॉन्ग आने वाला है। लगभग 150 चैनल्स का, इट मीन्स कि पूरे वर्ल्ड में। तो आप सभी लोग टीवी पे नजर आएंगे सॉन्ग्स के अंदर, जो लोग प्रैक्टिस कर पाएंगे। प्रैक्टिस करना आपका काम है, रिलीज करवाना मेरा काम है। तो अब आप लोग रेडी हैं इन सब चीजों के लिए? परफेक्ट। किसी का कोई भी सवाल नहीं है? आई थिंक अभी तक नहीं है किसी का सवाल। डन, ठीक है। कीर्ति जी, ये Sir, I'm so sorry to interrupt in between. I do have a question. यस बताइए। गुड इवनिंग सर। मैं बोल रही थी कि हम लोग को ड्रेसेस कैरी करना पड़ेगा एज एन ऑल्टरनेटिव, और ड्रेसेस विल बी प्रोवाइडेड टू अस आल्सो। आपकी क्राउन की जो ड्रेसेस हैं वो ऑलरेडी डिजाइनर्स क्रिएट कर रहे हैं, बट जो क्राउन की ड्रेसेस होती है वो आप उससे शूट पे नहीं आप प्रॉपर ले पाते, क्योंकि वो एक वन टाइम ड्रेसेस है। आप उससे बहुत सारे शूट्स नहीं क्रिएट कर सकते। हाँ, ओके, सो ऑल्टरनेटिव। पोर्टफोलियो, हाँ ऑल्टरनेटिव। और जो पोर्टफोलियो होता है वो बेसिकली कभी भी गाउन में जिसमें क्राउनिंग होती है उसमें अकेले उससे पोर्टफोलियो नहीं क्रिएट होता। तो जो ऑप्शन आपके पास है, क्योंकि आपके लिए फोटो शूट का हमने जो प्लान डिसाइड किया है वो एक कंप्लीटली होटल में रूम भी रहेगा, जहाँ पे अलग अलग टाइम पे आप 10 कैंडिडेट 15 कैंडिडेट जाएंगे। आप अपने फटाफट चेंजेस करेंगे। वहाँ पे 2 फोटोग्राफर्स कंप्लीटली क्लिकिंग पे लगे होंगे जिनकी एडिटिंग आफ्टर इवेंट होगी। एंड इसके अलावा आउटडोर में 3 जगह पे आपका शूट्स रखा गया है, जो अलग अलग ग्रुप्स के अंदर उनके शूट्स रेगुलर रहेंगे। इट मींस कि आपके लिए 8 लोगों की फोटोग्राफर्स की टीम और 3 वीडियोग्राफर्स की टीम रेगुलर वर्क कर रही होगी वहाँ पे। कंप्लीटली वहीं स्टे उनका है और 12 घंटे से 14 घंटे तक वो अपना काम करेंगे। बट अगर आप कॉपरेट और सपोर्ट करते हुए अपने काम को बहुत ईजी बनाएंगे तो वो शूट बहुत अच्छा हो पाएगा। अच्छा सर, एंड वी कैन, हम लोग कुछ भी ला सकते हैं, मतलब कोट सेट, वन पीस, शॉर्ट, ब्लेजर। अच्छा, जो आप और कंफर्टेबल है। हाँ, एक और क्वेश्चन था कि हम लोग को 18th को कितने बजे आना है या 17th को आना है? एक तो नाम क्या, सीमांतिका जी। सीमांतिका, देखो जो भी आपका शेड्यूल है, सब कैंडिडेट्स का क्या शेड्यूल अलग अलग है। किसी का 17 का चेक इन है, किसी का 18 का चेक इन है, तो वो डिटेल अकाउंट मैनेजर से आप कंप्लीट ले लीजिए। और ये 10 तारीख को तो आपके पास कंप्लीट शेड्यूल पहुंच ही जाएगा। डेट्स ऑलरेडी डिसाइड हो चुकी है कि किसकी विनिंग का पार्ट कैसे है। हाँ, अगर एक बहुत अच्छा सा पॉइंट है जो मैंने नोट किया हुआ है कि आप लोग अगर कोई भी एज अ गेस्ट, स्पेशल गेस्ट के तौर पे 20 तारीख को रुकना चाहें तो उसकी प्लानिंग करके अपने अकाउंट मैनेजर को आप दे दीजिएगा कि आप आना चाहते हैं उस सेरेमनी में। क्यों कि जैसे ये ब्यूटी कॉन्टेस्ट टूर्नामेंट देश का पहला और बड़ा टूर्नामेंट है, वैसे ही एक अवार्ड शो है जिसकी डिटेल्स आपके पास ऑलरेडी है, द रियल सुपर हीरो और द रियल सुपर वुमन। ये 2 अवार्ड के टाइटल्स के अवार्डीज वहां पर आएंगे पूरे इंडिया से। तो जो लोग आ पा रहे हैं वो लोग वहां सेरेमनी अटेंड करेंगे, और आप स्पेशल गेस्ट अगर हैं तो आपके द्वारा उनको अवार्ड दिया जाएगा, जिसका भी नंबर जैसे आ सकता है। तो लिस्ट कंप्लीट होने के पहले अगर आप चाहते हैं इसको सेरेमनी को अटेंड करना तो अपना नाम वहां पर भी आप लिखा सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए भी ड्रेसेस जो होगी वो आप कैरी कर सकते हैं। एक और चीज थी, जैसे सीमांतिका तुमने क्वेश्चन पूछा ड्रेस के लिए, तो एक और चीज मैं क्लियर करूं कि जितने भी ड्रेसेस डिजाइनर्स के थ्रू बनाए गए हैं आपके लिए, जो गाउन सेरेमनी के लिए बनाया गया है, उन ड्रेसेस के लिए हमने ऑलरेडी उनसे एग्रीमेंट टाई अप किया है कि अगर आप वो परचेज करना चाहते हैं तो वो उनकी कॉस्ट पे आप लोग उनसे बाय कर सकते हैं। यानी कि सिर्फ फैब्रिक की और लेबर की कॉस्ट ही आपको उनको पे करनी है, उनका प्रॉफिट उन्हें नहीं देना। ठीक है सीमांतिका, और क्वेश्चन है किसी का? थैंक यू सो मच सर। वेलकम वेलकम। ठीक है कीर्ति जी, ऑलमोस्ट ये भी क्लियर हो चुका है ये। हाय सर, गुड इवनिंग। यस यस, नेहा जी बताइए। हाय सर, आप कैसे हो? बिल्कुल बढ़िया हूँ। आप जैसी टीम मुझे मिली है ना, तो भगवान ने मुझे ऑलरेडी हमेशा के लिए बच्चा बना दिया। मेरे को वरदान मिल चुका है। थैंक यू सर। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि जो वीडियो
है, तो उसे हमें रिकॉर्ड करके मतलब प्री रिकॉर्ड करके फिर सबमिट करना है, या ये प्रोसेस कैसा है? अगर नेहा आप प्रैक्टिस करते हैं, उसकी रील्स अगर बनाते हैं, तो वो जी। आपकी परफॉर्मेंस को चेक कराएगी कि आपको ओके। क्या चेंजेस की नीड है उस समय। क्योंकि जी। देखिए टाइम लिमिट बहुत कंपलसरी है कि अगर हम टाइम नहीं बनाएंगे तो इतना बड़ा इवेंट नहीं हो पाएगा, राइट। तो इस कारण से रील्स अगर आ जाती है तो क्लियर हो जाता है नेहा कि हम कितने लोगों को इंट्रोड्यूस कर पाते हैं। जैसे कि मैंने अभी तक उसकी कोरियोग्राफी की जो प्लानिंग की है, वो 30 कैंडिडेट से 25 कैंडिडेट्स पूरे स्टेज पे वन टाइम होंगे और उनके लिए 3 वीडियोग्राफर अलग अलग एंगल पे उनको नोटिस कर रहे होंगे। तो उनको जूम करके हाईलाइटेड पे लाना, जो सिंगर ऑलरेडी है उसको पिक्चराइज करना, और पीछे जो पूरी स्क्रीन लगी है वो कंप्लीटली उस तरीके से डिजाइन की गई है। तो आपके बहुत छोटे छोटे एफर्ट्स काफी बड़े एफर्ट्स हो जाएंगे। ओके बट सर। रील्स अगर बना लेंगे तो प्रैक्टिस में आ जाओगे आप कि हाँ आप उस सॉन्ग पे बिल्कुल परफेक्टली डांस कर पा रहे हो। ठीक है सर, ओके, आई गॉट इट। ठीक है। और ड्रेसेस का कलर जो होता है वो बहुत नॉर्मली, आप जैसे डांस के ड्रेसेस होते हैं, आज आप किसी को फॉलो करें कि पंजाबी सॉन्ग में कैसी ड्रेसेस होती है, जी। कॉपी करने की नीड नहीं होगी, बट खाली समझने की नीड होगी। तो वो रेफरेंस शॉर्ट के ड्रेसेस लिए। जी। बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा। ओके सर, थैंक यू सर। वेलकम। यस तबस्सुम प्लीज। Sir, hello sir, how are you? आई एम गुड गुड। Sir, I just wanted to know जो ज्वेलरीज हम पहनेंगे गाउन के, that we have to carry और वो ऑलरेडी रहेंगे गाउन के? ज्वेलरी भी आपको यहाँ से दी जाएगी, एंड कुछ लोगों के लिए गिफ्ट हैम्पर्स भी रेडी हो चुके हैं। सभी को फॉरएवर लीव्स की तरफ से 5,000 से ऊपर का गिफ्ट हैम्पर दिया जा रहा है। इसके अलावा 3-4 अलग स्पॉन्सर्स हैं जो आप लोगों को सेलेक्ट करके आपके लिए गिफ्ट हैम्पर्स बना रहे हैं। उसमें हो सकता है ज्वेलरी भी हो सकता है ड्रेसेस भी हो। तो ये अलग अलग हैम्पर्स ऑलरेडी रेडी हो रहे हैं। उनके लिए भी कंप्लीटली, अगर आपके पास में शूट को बिल्कुल प्रॉपर वे में करना है तो उनके साथ बाइटिंग का मौका भी आपको मिलेगा उन पैकेट्स को हाथ में लेके। तो ज्वेलरी आपकी गाउन के साथ में बहुत नॉर्मल, क्योंकि अगर गाउन क्राउनिंग के टाइम पे गाउन के साथ हैवी ज्वेलरी डाल दी तो वो ज्वेलरी प्रमोशन हो जाएगा, वो बेसिकली आपका शूट या आपकी क्राउनिंग नहीं रह जाएगी। तो बहुत लिमिटेड लाइट ज्वेलरी का इस्तेमाल किया जाएगा उसमें। एंड रिंग्स वगैरह या ब्रेसलेट आप अगर रूटीन भी पहनते हैं तो वो आप कैरी कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। Okay, fine sir. Okay, thank you. ओके तबस्सुम। यस जैस्मीन। गुड इवनिंग सर, कैसे हैं गुड आप? इवनिंग। बिल्कुल बढ़िया। अगर सभी लोग पूछेंगे ना, तो एक शादी के अंदर मैं गया था, वहां पे लड़के वाले और लड़की वाले फंस गए। लड़की वालों ने क्या बोला कि हम सबको खिलाएंगे। मैंने बोल दिया कि ठीक है सब खिला देना। अब वो सब खिलाने के अंदर जब आए तो एक एक पीस वो खिला रहे हैं और खाने वाला व्यक्ति एक जना ही सबकी सब खा रहा सबका आंसर दे रहा है। है। ऐसे ही आप क्या, आप तो बड़े आराम से पूछ लो कि कैसे हैं आप, कैसे हैं आप तो सब एक एक बार ही पूछ लो, लेकिन मैं जवाब देते देते थक जाऊंगा। ठीक है सर। सर एक्चुअली मैं पूछना चाहती थी कि वो जो ड्रेसेस हैं वो सारे के सारे वेस्टर्न का प्रेफरेंस है, या जो डिजाइनर साड़ीज होती हैं हम वो भी ला सकते हैं शूट? देखो कैट जो आपका कैटलॉग यानी कि जो आपका पोर्टफोलियो है उसके अंदर आप चाहें तो अपने एथनिक ड्रेसेस भी यूज कर सकते हैं, बट एथनिक ड्रेसेस को पहनना, उसके बाद उसका मेकअप लेना, उसके हेयर स्टाइल लेना बहुत टफ होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है। बेस्ट होता है कि आप वेस्टर्न ड्रेसेस के अंदर अपना कैटलॉग शूट कराएं, तो वो बहुत जल्दी भी होता है और उसकी पिक्चर की क्लियरिटी भी आती है। क्योंकि अगर एथनिक ड्रेसेस पहनते हैं तो टाइम कंज्यूमिंग के साथ में उसका मेकअप मैच करना बहुत टफ हो जाता है जी। उसके लिए ज्वेलरी भी शॉर्ट पड़ जाती है। जी सर, हाँ जी। तो बेस्ट रहेगा कि एथनिक के बजाय, साड़ीज के बजाय कोशिश वेस्टर्न की करें। लेकिन अगर किसी कैंडिडेट को लगता है कि उसे साड़ी में शूट चाहिए तो साड़ी वो कैरी कर सकते हैं, बट साड़ी पहनाने वाला ड्रेसअप यहाँ पे आपको नहीं मिल पाएगा, क्योंकि इतने लोगों के लिए इतनी टीम को होटल में लेकर के आना बहुत टफ चीज है। यस सर, आई एग्री। ओके जैस्मीन। यस सर, थैंक यू सर। यस मेरा यस अमृता जी प्लीज बताइए। हाँ सर, एक्चुअली अभी आपने ये बताया कि एक जो अभी सॉन्ग्स रिलीज हुए हैं तो वो मैक्सिमम पंजाबी बेस्ड सॉन्ग्स हैं, सो दैट एक सॉन्ग अभी आया है जो इंग्लिश पंजाबी मिक्स है। दूसरा सॉन्ग जो रिलीज होने वाला है अराउंड 12 के पहले रिलीज हो जाएगा, वो कम्प्लीटली हिंदी और इंग्लिश मिक्स होगा, उसमें पंजाबी नहीं है, वो ड्यूट है, वो मेल फीमेल सिंगर से रिलेटेड दोनों का है। ओके, तो सर तो उस वीडियो में खुद को आने के लिए देन वहाँ पे शूटिंग होने वाला है जैसे कि आपने बताया है, तो दैट मेक्स इट नेसेसरी कि हम लोग पंजाबी रिलेटेड कोई अटायर कैरी करें, या जैसा भी सॉन्ग होगा वैसा रिलेटेड कोई अटायर? अगर उस गाने को सुनोगे तो उसमें पंजाबी अटायर नहीं है, उसमें वेस्टर्न अटायर है पूरा। पंजाबी वर्ड्स हैं, आपको
जो फैशन इंडस्ट्री से रिलेटेड गाना है वो उसमें मेंशन किया गया है कि आपकी खूबसूरती क्या है, आप क्या फेस क्या है। यस, तो वो पूरे लिरिक्स बहुत तरीके से प्लान किए गए हैं एज अ फैशन इंडस्ट्री के हिसाब से। आपको ये भी बताता हूँ कि मैंने तो भी बताया आपको सॉन्ग रिलीज के लिए, और ऑलरेडी न्यूज चैनल भी बता चुकी है। जय प्लीज एक न्यूज कटिंग बताना जिसमें दिया गया है कि ऑलरेडी एल्बम रिलीज किया जा रहा है। यस सर, मैं अभी चेक करके अपडेट कर। तो यस नम्रता, जितना अच्छा आप वेस्टर्न लुक लेकर आएंगे गाना उतना ही ज्यादा हिट होगा। अगर 150 चैनल्स पे गाना आएगा और एक सॉन्ग पे कम से कम 15 वीडियो आने हैं, इट मींस कि ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड होगा कि 15 वीडियोस एक साथ आएंगे मार्केट में। तो उसमें कोई भी एथनिक ड्रेसेस नहीं है, कहीं पर भी एथनिक ड्रेसेस नहीं है, और एथनिक का मार्केट आज हाई पे है भी नहीं आपकी, बल्कि उसके अंदर जो मार्केट वैल्यू होनी चाहिए, जो सेलिब्रिटी पे नाम आना चाहिए, वो नहीं आ पाएगा, वेस्टर्न पे ही आएगा जितना भी आएगा। Sir, I have a question. Thank you, sir. Yes, welcome. Yes, सारा प्लीज बताओ। Sir, I want to ask कि मैं कोई पर्सनल फोटोग्राफर ला सकती हूँ क्या अपने साथ? बिल्कुल भी नहीं ला सकते, क्योंकि वहाँ पे जो हमारी टीम के फोटोग्राफर है सिर्फ वही अलाउ हुआ है। इवन किसी को वहाँ ट्रेनिंग के लिए भी अलाउ नहीं है, उससे पूरा कॉम्बिनेशन बिगड़ जाता है, सब लोगों का सेटअप बिगड़ जाता है, जिसकी जो पोजीशन ऑलरेडी ग्राफ पे डिसाइड की गई है वो सब मिसमैच हो जाती है। ओके, एंड वन मोर क्वेश्चन सर, वो जो गाउन्स हमें दिए जाएंगे तो वो हमें बाय करने पड़ेंगे? नहीं, आप चाहें, आपको लगता है कि ये मेरे लिए मतलब का है तो आप उसे कॉस्ट पे ही बाय कर सकते हैं। ये अपॉर्चुनिटी है आपके पास, आपको बाय करने की नीड नहीं है, कंपलसरी नहीं है आपके लिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि जिसमें आपकी क्राउनिंग हुई है उस ही आप ड्रेस में अपने शहर वापस लौटें और वहां आपकी फोटोग्राफी आपकी फैमिली के साथ हो, अगर ऐसा आप चाहते हैं तो ये ऑप्शन रखा गया है, जिसमें सभी डिजाइनर्स एग्री कर चुके हैं कि वो कोई प्रॉफिट नहीं रखेंगे, वो सिर्फ आपको कॉस्ट के ऊपर ही ये ड्रेस अवेलेबल कराएंगे। फ्यूचर में तो वो अपनी कॉस्ट जो भी रखना चाहें, आगे ड्रेसेस आप बनाएं तो वो अपनी कॉस्ट पे करेंगे। बट राइट नाउ हमने जो टाई अप किया है, जो कन्वेंस उनको किया है, वो आपकी सुविधा के लिए कि आपको एक्स्ट्रा पैसा पे ना करना पड़े, ये उनसे हमने तय कर लिया है। थैंक यू। हेलो सर। यस, कहाँ से आवाज आई है? रक्षिता। या गुड इवनिंग सर। आई एम श्योर आप बहुत अच्छे होंगे एंड द एक्साइटमेंट अमंग ऑल ऑफ अस। एंड आज वाकई में तुमने ऐसी लाइन बोली है कि मैं अब परमानेंटली अच्छा हो गया। क्योंकि जब अगर आप लोगों के दिल में दिमाग में मैं अच्छा रहने लग गया ना, तो बस मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। एब्सोल्युटली। सो अबाउट द फोटो शूट्स जो हमने मेंशन किया, दैट पोर्टफोलियो शूट्स हो रहे हैं, तो उसमें बेसिकली मूड बोर्ड्स रिक्वायर्ड होते हैं ना, जैसे थीम्स रिक्वायर्ड होती है। सो वो थीम्स लाइक आपने जैसे बोला कि वी कैन लाइक ब्रिंग आवर ओन ड्रेसेस और हम अपने हिसाब से भी ड्रेसेस सजेस्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली वो थीम्स लाइक हमें खुद को भी अपने दिमाग में डिसाइड करनी है, या फिर यू नो द फोटोग्राफर्स वो हमें सजेशंस देंगे, लाइक हाउ इज इट, लाइक एटलीस्ट अगर हमें डिसाइड करनी है तो वी कैन थिंक ऑफ समथिंग। रक्षिता, आपके सवाल का जवाब देने के पहले मुझे मजबूरी में आपसे सवाल पूछना पड़ रहा है। वैसे तो पूछना नहीं चाहिए क्योंकि सवाल का पहले जवाब दिया जाता है, लेकिन जब जवाब के साथ उसको समझाना भी पड़े तो सवाल पूछना पड़ जाता है। कितने लोगों का पोर्टफोलियो क्रिएट होगा और कितने लोग उसको कहाँ अपने तरीके से इस्तेमाल करेंगे, इसका आइडिया है आपको? या आई मीन सारे विनर्स का तो क्रिएट हो ही कितने? आइडिया 300 विनर्स, 300 विनर्स। अगर गलती से एक ही थीम के ऊपर पोर्टफोलियो क्रिएट कर दिया गया तो वैल्यू ही खत्म हो जाएगी। राइट, दैट्स राइट। ये जवाब मैं अगर डायरेक्टली देता तो शायद सबको समझ नहीं आता, इसलिए मुझे सवाल पूछना पड़ा कि इतनी बड़ी टीम का जब शूट होगा तो वो बिल्कुल डिफरेंट तरीके से होना चाहिए, उसको मिक्स करके कॉपी नहीं करना चाहिए, सब अपने अपने। इसीलिए मैंने सबसे कहा है कि अपने साथ कुछ ड्रेसेस कैरी करें जिससे डिफरेंट लगे, अन्यथा एक टाइम पे एक होटल में एक प्लेस पे अगर 300 लोगों के शूट होंगे तो कॉमन हो जाएंगे, कॉमन का वैल्यू पार्ट खत्म हो जाएगा। ओके, अंडरस्टूड। सो मतलब हमें खुद को सोचने चाहिए, यू नो, व्हाटएवर थीम्स। कोशिश करो, सब टीम है, जैसे 25 लोगों की टीम है तुम्हारी, ग्रुप है, अब उसके अंदर सबके ड्रेसेस हैं, ऑटोमेटिकली आइडियाज आते हैं। जब आप यूनिटी में वर्क करते हैं तो बहुत सारे आइडियाज क्रिएट होते हैं। हाँ,
अगर आप बहुत स्मूथली और कूल होके काम करेंगे तो हर फोटोग्राफर आपके साथ होगा, आपका टीम मैनेजर, अकाउंट मैनेजर आपके साथ होगा, आपको वो भी आइडियाज देगा। ऑलरेडी उनके पास अपने आइडियाज होते हैं, बट अगर सारे आइडियाज उनके ले लिए तो सब कॉपी हो जाएंगे। राइट, एब्सोल्युटली। ओके रक्षिता, ये सवाल आपने जो पूछा है ये कईयों के दिमाग में होगा, शायद अब सबके लिए क्लियर है या कोई और भी पूछना बाकी रह गया इससे रिलेटेड? रक्षिता, आपने बहुत बड़ी प्रॉब्लम सर, आई वुड लाइक टू, मैं थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगी अभी। जो हमारे शो कोरियोग्राफर हैं वो भी मीटिंग में आ गए हैं, सो आई वुड जस्ट लाइक टू इंट्रोड्यूस हिम एंड यस उत्सव, मुझे भी 2 मिनट का समय दे दीजिए प्लीज। 1 सेकंड सर, आपके बाद मुझे 2 मिनट का समय दे दीजिए जब तक उत्सव जी बोलेंगे, मैं भी थक गया हूँ थोड़ा सा। ठीक है सर, ठीक है, बिल्कुल आपका ही सारा टाइम है सर, दीजिए। नहीं 2 मिनट का ब्रेक ले लेता हूँ बल्कि। ओके ओके ओके, ठीक है सर, वो बीच में आवाज नहीं आ रही थी तो इसीलिए आई कुड नॉट अंडरस्टैंड। कोई नहीं, आप तो ये सर का थोड़ा सा ब्रेक टाइम स्टार्ट होता है, तब तक जो हमारे सेलिब्रिटी शो कोरियोग्राफर हैं, जो ऑफिशियल शो डायरेक्टर हैं फॉरएवर मिस एंड फॉरएवर मिसेस इंडिया 2021 के, मिस्टर उत्सव ढोलकिया, ही इज आल्सो हियर टू गाइड यू regarding the whole process for grand finale 2021. And if there are any questions with respect to the event, with respect to the rehearsals, he's all yours. Could I have your video and mic on, Utsav? I am already on. I'm already on. Yeah. Hi, Kirti ji. How are you? I'm good. Everyone has been asking Rajesh ji, तो मैंने आपको पूछ लिया अभी. All right. A quick one, ladies. I have been getting a lot of queries on my social media from each and every one of you on an individual basis. You know कि क्या करना है, lounge wear क्या होता है, एयरपोर्ट में क्या पहनना है, कौन से जूते लेके आए, कैसे चलना है, क्या मेकअप करना है. तो मेरे ख्याल से ना ये कॉमन प्लेटफॉर्म है, मैं सबको एक साथ एड्रेस कर लूं तो I would feel much happy and I'll be sure I'll be able to cater to your questions also. So मैंने कीर्ति जी से रिक्वेस्ट की थी to keep a small session with me wherein मैं नहीं, आप हमसे क्वेश्चन पूछोगे जहां हम आपको जवाब देंगे and we'll try to solve your queries. So ladies, I am all yours. You can ask me what you want. So आप मुझे पूछ सकते हैं अगर कोई भी डाउट्स हो आपके कि एरोप्लेन में क्या पहनना है, क्या पहन के उतरना है, क्या पहन के चलना है, तो I am all yours. I can answer any questions that you have. Yep, Sarah. सर, हम पहन कर क्या आएंगे? लाइक when we came 18th को हमें आना है, राइट? तो कैजुअल लाइक हम शॉर्ट्स पहन कर आ सकते हैं? जयपुर में ठंड तो बहुत होगी, अगर आपको शॉर्ट्स पहनने की इच्छा है तो वो आप पे, हम तो पहनने की हिम्मत नहीं करेंगे। विद कोट सर, विद कोट। चलिए एक काम करते हैं, सी जनरली ना फ्लाइट भी ठंड होती है आजकल, माहौल भी थोड़ा 19-20 हो गया है। आई वुड रिक्वेस्ट यू टू वेयर फुलर क्लोथ्स इन द एयरलाइन, so you are free to wear whatever you want. See, fashion क्या होता है? Fashion is not something which is beyond your limits. It is something where you are comfortable. If you are comfortable, wear shorts, but I would not be comfortable in cargo pants and shorts and all this stuff. Shorts with boots. पहन लो, you will look stylish. It's up to you. Yeah, that is what I'm asking. एक मिनट उत्सव जी, मैं बीच में आपको रोकना चाहूंगा क्योंकि सारा जो क्वेश्चन पूछ रही है वो बेसिकली क्या दिमाग सेट करके पूछ रही है, वो अब आपसे जवाब नहीं चाह रही है। वो ये एक्सप्लेन करना चाह रही है कि मैं ऐसा करने जा रही हूँ, ये परफेक्टली हाँ कर दीजिए बस। वो आपसे हाँ करवाना चाह रही है। नहीं सर, मैंने बोला जो भी कंफर्टेबल लगे पहन लो आप। लेकिन सारा, मैं एक छोटी सी चीज बताता हूँ सभी के मतलब की है कि आप ड्रेसेस शॉर्ट पहन के अगर एयरपोर्ट से बाहर आते हैं, फिर आप मॉडल की कैटेगरी में आते हैं, आप कंटेस्टेंट की कैटेगरी में आते हैं, लेकिन आप सेलिब्रिटी की कैटेगरी में नहीं आते। अगर आप अपने आप को सेलिब्रिटी मानते हैं तो आपकी ड्रेस सेलिब्रिटी जैसी होनी चाहिए, कंप्लीट कवर्ड होनी चाहिए। आपके चाहे आप ट्राउजर्स पहने, चाहे आप ब्लेजर पहने, चाहे आप शर्ट्स पहने, तो आपको लुक, वो आपको सेलिब्रिटी लुक देना चाहिए। सर बिल्कुल। ओके, डन है ये? डन। वेरी गुड। अच्छा, एक और चीज है कि एक बहुत अच्छी लाइन किसी अच्छे स्पीकर ने लिखी थी कि गरीब सोच आपको कभी अमीर नहीं बना सकती। सुना है कभी किसी ने? वेरी गुड, जैस्मीन ने सुना है, नम्रता ने भी सुना है। वैसे ही अगर आप सिर्फ मॉडल बनना चाहते हो तो वो आपको कभी सेलिब्रिटी नहीं बना सकती। ये सोच आपको बदलनी होगी। आपको अपनी सोच में सेलिब्रिटी वर्ड डालना पड़ेगा, जिससे आप अच्छा सोच पाएंगे। अपने ड्रेसिंग के लिए आपको किसी से एडवाइस की नीड नहीं रहेगी। आप अगर अपने आप को सेलिब्रिटी के तौर पे किसी के सामने प्रेजेंट करना चाहते हैं, ऑटोमेटिकली आपकी सोच में वैसी ड्रेसेस क्रिएट होंगी।
तो अपने आप को कंटेस्टेंट, मॉडल या एंटरप्रेन्योर ना बनाए, सेलिब्रिटी बनाए, राइट? यस उत्सव जी, प्लीज कंटिन्यू। सॉरी आपको बीच में रोका। नो वरीज सर, नो वरीज सर, एब्सोल्युटली फाइन। सो सारा जी, मैं आपको ना यहाँ पे सर ने तो परफेक्ट बात बताई दी है राजेश भाई ने, बट मैं आपको एक चीज ऐड करना चाहूंगा। सी जनरली फैशन इज वेयर यू फील कंफर्टेबल, राइट? एंड प्लस कंसिडरिंग द सीजन, you know, it's not going to be warm. आप गोवा नहीं जा रहे, जयपुर जा रहे हो. So I would request, you know, a general attire or a easy leisure attire would be probably a track pant with a hoodie or something like that. Because even celebrities and artists carry these. You can't wear an evening gown and walk into the aircraft. Na saadi mein aap jaoge, it will be very uncomfortable for you, right? So my personal suggestion, or probably what I would be wearing, or my personal choice, of course you are free to wear what you want, but my personal choice is going to be probably a track pant with a hoodie and sneakers, because heels, boots, ये सब पहन के आओगे एयरपोर्ट में, लंबा लंबा चलोगे, you know, आपके पैर जवाब दे देंगे आपको. So, you know, avoid heels, avoid those boots at the airport. Wear something which is casual, comfortable, and you take it easy. Okay. Right? Or koi? Right. Anyone else? I'm here to answer your queries, you know, because individually I cannot cater to each and every one. So here I'm all yours. Sir? Yeah. Good evening, sir. I wanted to ask you this, that there is like no option of having some kind of rehearsal before for walking with you? Walking with me or walking with your fellow contestants? Sir, as in like you would teach us, you know, the exact, like as in we all have got the trainings, right, as such. Lekin once, you know, going before on the stage in front of everyone, if there would be one round of, you know, just walking along with our fellow contestants. I am going to be present a day earlier, right? And definitely, you know, we will make you comfortable. Don't worry on that. Virtually, you have been trained by, you know, Shailaja. She has already sent you videos and things like that, right? And I'm sure these videos are up to the mark and they are very nice. So, अगर कुछ स्पेसिफिकली जानना चाहते हो स्टेज पर क्या करना है, तो मैं तो आपके बाजू में रहूंगा ही, you know, आपके साथ रहूंगा, आप सबके साथ रहूंगा. So, अगर कुछ स्पेसिफिक चीज पूछना सकते हो, तो definitely I'll be all yours right from the 16th onwards. I'm landing very early morning on 16th. So, अगर आप जल्दी आ रहे हो, I'll be there at your service. So that's not a problem. So, you know, we'll try to squeeze out some time, because training 300 people in 3 days, it's, you know, it's a task. So I'll do my best to cater to every one of you in person, on stage. जितना भी समय हम स्क्वीज कर सकते हैं एक दूसरों के साथ, we'll try to squeeze in and I'll try to keep you happy. Right? Thank you so much, sir. Thank you. Welcome. और कोई queries, questions? Yeah. Hi, Utsav. Hi. Yeah, this is Rakshita. Good evening. Good evening. And I just wanted to ask, since we're discussing about attires, you know, what we have to wear, what looks good on airport and everything. And we've also been told that we'll be, you know, presenting in media bites and all. So Right. is there some specific attire that you would recommend for media bites? You know, what would look more like a celebrity? Because I think we have little idea about that. See, it depends upon what point of time, what point of day are you going to wear it. If you are trying to wear it at the check-in counter, at the reception of a lobby, or at a cocktail evening party, or after being crowned, it depends upon what the occasion is. Because it would depends, you know, it depends upon, you know, अगर आपकी media bite breakfast के time हो रही है, तो it would depend upon that. You can't wear an evening gown early morning and sit for the breakfast. You can't do that. Right? No one does it. Technically कोई नहीं करता ये चीज. Right? So अगर आप breakfast में आ रहे हो, अगर आप check in कर रहे हो, तो leisure wear होगा. Right? It cannot be a night suit, but it can be a track pant and a hoodie or something like that, or a t-shirt or something like that. Right? But a smart one. Right? Yeah. Now, if it's going to be probably after the event, it has to be a cocktail wear or a one-piece gown or a flowy gown or whatever, you know, has been decided by the team. Right? Oh, and if it's going to be when you are not functioning, when you are not going to be on the stage, or when you are not going to be on the show, anything formal sells well. Maybe a jacket and a shirt and a trouser, maybe a skirt and a, you know, it's whatever suits you, whatever suits your body. But a formal wear is recommended, definitely. Right? Okay. Yeah, got it. So that is the thing. And of course, your footwear and your jewelry has to match it. Absolutely. Right? Okay. Good, sir. Yeah. Yeah. Thank you. Or koi doubts, evening, queries? sir. Hi. Good evening, sir. I'm Raj Lakshmi Savan. Hi. I hope you're doing great. Fantastic. Sir, it would really be a help if I could know the schedule of the program. I know what all things are going to be conducted, but the schedule from 17 to 19. Okay, so Utsav, I will take this question up. Hi, Raj Lakshmi. Good evening. Hello, ma'am. जो आपके पास schedule है, पूरा itinerary है, you will be receiving it maximum by 11th or 12th of December. So do not worry about it. जो tentative idea है,
वो आपके अकाउंट मैनेजर ने आपको दे दिया होगा, that आप किसी भी दिन आ रहे हैं, whether you're coming on 17th, 18th or 19th, your check-in time or your check-out time will be 11 AM. It will be somewhere around 11 AM. 11 बजे ही आप चेक इन करेंगे और 11-12 बजे के आसपास ही आप चेकआउट करेंगे। बाकी पूरे दिन का जो डिटेल्ड स्केड्यूल है कि आपकी रिहर्सल्स कब होंगी, ड्रेस फिटिंग्स कब होंगी, आपका मेकअप ट्रायल कब होगा और फाइनली आपका क्राउनिंग इवनिंग में कब होगा, तो वो एग्जैक्ट टाइमिंग के साथ you will be receiving maximum by 12th of December. Okay? Thank you, ma'am. So ladies, go on, Dhruti. Good evening. How are you? All well. Thank you. I'm good too. Thank you. I had one question. So, will we actually be rehearsing for the evening show? Is that what the rehearsal? We are trying to figure out a schedule. Kriti ji has just mentioned that we are formulating a schedule. We are trying to be very, very sweet to you, very good to all of you all, and we are trying to keep everyone happy. But let the schedule come out, and we'll try to fit in everything. We'll try to keep you happy and satisfied. And we want to do a very good show with all of you all. Event that everyone remembers lifetime, because it's a big opportunity. It's a big day. It's a big celebration happening. So definitely we'll try to do some rehearsals. Definitely we'll try to fit in something. Which definitely Kirti ji and the whole team of FSI is working on it. I have another question also on the same line. So when we are actually rehearsing for the further events that will be happening on the 18th and the 19th, will we be judged during our rehearsal, or there is no judging at the time of rehearsal? Okay, what I would like to tell you, you're already being judged daily. Kirti ji and Shreya ji and so even when we are rehearsing, okay. Everything, so I was wondering for the further. Okay. No, so where no one is going to judge you, Dhruti. This event is only and only for crowning. जितना भी आपको judge करना है, आपको score करना है, that will be done maximum till 15th of December. उसके बाद आपको कोई judge नहीं करेगा वहाँ पे. Okay. That is why we are saying that you have to practice as much as you can using your heels. जो heels आप यहाँ पे 2 लेके आने वाले हो, any number of heels that you're getting, उन heels में आपको practice करके आना है. Here only the basic format. Rehearsals में क्या होगा? Rehearsals में आपको ramp walk करना नहीं सिखाया जाएगा. Rehearsals में आपको format बताया जाएगा, that how you're supposed to walk on stage, what is the form that you're going to use, किसके बाद कौन आएगा, the sequence, right? So that will be taught here, and no one will be judging you. You will just be crowned. You will be a celebrity then. Okay, awesome. Yeah, thank you so much. Thank you. Dhruti ji, I'll like to add something what Kirti ji said, but don't let your guard down. कोई judge नहीं कर रहा, इसका मतलब ये नहीं कि आप easy हो जाओ. Don't be easy. Because then, if you are already a celeb, you're already been proclaimed as a celeb, you have to watch your guard much more. Right? Yeah. So मेरी आंखों में you will be judged till the time you exit. Definitely. Right? Of course, it's not going to be marked, but you need to make your mark, your impression on the audience and the organizers. Like, we met a girl like Dhruti and she was outstanding. People have to remember you. Right? Yeah. Awesome. Yeah, sounds wonderful. Thank you. एक सेकंड ध्रुति, इसके अलावा नेक्स्ट ईयर की प्लानिंग के लिए आपको जज किया जाएगा, आप क्राउन लेते समय कैसे लग रहे हैं और क्या स्पीच दे रहे हैं. ये नेक्स्ट ईयर के लिए मिस यूनिवर्स मिस एशिया के लिए प्लानिंग होगी, इसलिए जज तो किया जाएगा, बट नेक्स्ट ईयर के लिए. नेक्स्ट ईयर के लिए अभी से? माय गॉड. ओके, अभी से प्लानिंग है उसकी. ओके. इसके लिए एक और चीज का मेरा पॉइंट था कि नेक्स्ट ईयर की प्लानिंग के लिए बीच में कॉन्फ्रेंस भी रखी गई है. हर एक कैंडिडेट से डिस्कस किया जाएगा कि वो आने वाले टाइम पे एफसीआई की टीम के साथ कैसे वॉकिंग करना चाहते हैं, मिस यूनिवर्स मिस एशिया का कॉन्सेप्ट क्या है. ये वहीं पे बीच में हाफ एन आवर का टाइम रखा गया है, बट वो पॉसिबल तब होगा जब आप अपने शेड्यूल को बहुत अच्छे से फॉलो करेंगे और कूल रहेंगे. कोई प्रेशराइज नहीं है, कोई दिमाग पे स्ट्रेस नहीं है किसी तरह का. कोई, जैसा कि आपने सवाल पूछा, कीर्ति मैम ने जवाब भी दिया कि कोई जज नहीं कर रहा, तो कंफर्ट के लिए ये बेसिकली कॉन्सेप्ट ऐसा बनाया है कि आपके पास नर्वसनेस ना हो. जज नहीं करने के पीछे आप अपने आप को सेलिब्रिटी माने, बट ओवर कॉन्फिडेंट ना हो. राइट? ओके उत्सव जी, वापस कंटिन्यू करिए आप, मैं और ब्रेक ले लेता हूँ. No worries. So what do you ladies, once again, I'm sure Dhruti ji is convinced, and any more of my friends would like to ask me, I'm all yours. बोलिए. Go on. Jasmine, yeah. Good evening, sir. Good evening. Sir, I have 2 questions. Actually, one is that वो जो transparent heels आजकल आती हैं, वो तो मैंने सुन लिया कि beige and neutral या फिर black वो carry करनी है. जो transparent heels आती हैं, क्या हम वो भी carry कर सकते हैं? जो fully transparent होती हैं. See, पहले तो heels नहीं, उसे stilettos कहा जाता है. First, the word when you go to a store, when you go to a high-end store, call it stilettos, because I would expect you not to use the word heels,
बिकॉज ये है ना स्टार्टिंग में यूज करते थे, चलता है, अभी नाउ यू आर बीइंग क्राउन्ड, यू आर गोइंग टू अ डिफरेंट लेवल. सो लेट्स यूज द वर्ड स्टिलेटोस फॉर दिस, राइट? सो स्टिलेटोस ट्रांसपेरेंट आएगा, लेकिन ट्रांसपेरेंट के साथ साथ उसका बॉडी कवर होगा, ऊपर का हिस्सा या ब्लैक उसका सोल होगा या बेज डेफिनेटली होगा. द होल हील कैन नॉट बी ट्रांसपेरेंट. ओके, राइट? और अगर पूरी ट्रांसपेरेंट आती है तो उसका स्ट्रैप वगैरह कहीं ना कहीं का कोई ना कोई तो कलर होगा, सिल्वर, गोल्ड, बेज, कोई ना कोई कलर में आएगा डेफिनेटली. द हील, द मेन हील कैन बी ट्रांसपेरेंट, बट द होल एक्सेसरी कैन नॉट बी ट्रांसपेरेंट. Right? So you will have to follow it, and I think beige and nude is again the same, because आपने बोला beige and nude, but they are almost the same. Right? Yeah, it's all nude. Right? एक और पॉइंट है उज्जवल जी इसके अंदर कि पेंसिल हिल का इस्तेमाल क्राउन पे बेस्ट होता है. क्राउनिंग के टाइम पे पेंसिल हिल ही होनी चाहिए. Yes, absolutely. Stilettos, yeah. So that's what. So stilettos आप जब भी क्राउन करोगे तो फ्लैट प्लेटफॉर्म या फ्लैट हील्स नहीं पहनना. ग्रेस आपका stilettos में ही नजर आएगा. That is something what sir and I would like to tell you. All right. Any more questions? One more, sir. सर जब फोटो शूट होना है तो जो मेकअप करना है तो वो हम नहीं करना है कि मेकअप आर्टिस्ट होंगे उस टाइम पे? कीर्ति जी, for this so there will be a makeup artist, Jasmine. Makeup artist होगा वहाँ पे available, but you have to be prepared with your makeup essentials. ऐसा हो सकता है कि आप ज्यादा candidates हो, मेकअप नहीं मैनेज हो पा रहा है, तो आप भी फटाफट अपना, आपको मेकअप करना क्यों सिखाया है, ट्रेनिंग क्यों दी है, ताकि अगर जरूरत पड़े तो आप भी फटाफट अपना टच अप कर लें, बिकॉज़ वहां पे बहुत हेवी मेकअप की नहीं रिक्वायरमेंट होगी पोर्टफोलियो शूट के टाइम, राइट? बट यू हैव टू डू अ बेसिक टच अप या न्यूड मेकअप जो है वो आप करके यू हैव टू बी रेडी विद दैट. ठीक है? Jasmine ji, I would like to tell you one more thing, and to all the ladies out here, nude makeup is in. Don't एकदम लाल लाल मेकअप मत करके आना ब्राइडल की तरह, वैसा कुछ मत करना. Wear एकदम basic makeup. Don't overdo it. Just keep it minimal. Okay. Makeup is something which should enhance your beauty. It should not overdo it. Okay, sir. Right? So that is the only thing it should hide. If any flaws you have, if any scars, marks, it should hide. And that's it. It's nothing beyond that. So use minimal makeup. That's my suggestion to you. Right? Okay. Yes. Anyone else? Thank you, sir. Thank you, ma'am. Welcome. Yeah. Hello, Yes. sir. Yeah. Boliye. I have one question. What jewelry can I carry with what attire? See, it depends upon jewelry. It depends upon what you are wearing. If you are wearing Western wear, Indian wear, so it depends upon that. But I would prefer using minimal jewelry, because jewelry पे focus नहीं, focus आप पे होगा. Minimal is in. Yeah. Makeup भी nude बोल दिया है हम लोगों ने, तो minimal हो गया, काफी कम हो गया. तो jewelry भी something, don't wear something chunky and heavy and all. And as I have told in my earlier lectures or earlier classes with you all, I have discussed, don't wear anything which is genuine and expensive and original, because I don't want you to, in panic situation, you to keep it somewhere and getting those panic attacks and running behind it and all, because organizers are definitely not responsible for any losses and damages. So don't wear anything that is expensive and precious to you, right? Get something artificial, and small is in, chunky is out. Right? Thank you so much, sir. Okay, guys, very important. एक गलतियां मैंने हर फैशन शो, हर पैजेंट, हर बॉलीवुड शो में देखी है कि जब भी हील्स पहन के सेलिब्रिटी, आर्टिस्ट या मॉडल चलती है, नीचे की प्राइस टैग हमेशा दिखती है, 695, 995, 2095. तो वो प्लीज आप रिमूव करना, एंड देयर इज अ वे टू रिमूव इट. आई एम श्योर हैरी जी इज लाफिंग अ लॉट, शी इज स्माइलिंग एंड गिगलिंग, बट एनीवे देयर इज अ प्रोसेस ऑफ रिमूविंग इट. खींच के मत निकालना. Put a cello tape over it and then pull the cello tape over. जो प्राइस टैग होगा हील के नीचे, राइट, वो हमने दिखाना मत कि आपने कितने में खरीदी. प्लीज रिमूव इट बिफोर यू कम, and there is a way of removing it. Put a cello tape over the price tag and pull it off, so the price tag will come out neatly and cleanly. Clear, guys? Because then नहीं तो दिखेगा 2099, 3099, only 99, सब दिख जाएगा. वो it is not worth it then, right? Okay, anyone else? I have a question, Mr. Aksa. बोलिए. It's Naomi here. Yeah. I just want to ask you for the stilettos. Right. A particular inch that is like mandatory, or what I'm comfortable with? Feel comfortable. Feel comfortable. Don't try to imitate anyone. You are a different individual. You are a celebrity in your own manner, right? So don't try to copy a Deepika Padukone or a Bipasha Basu or a Lara Datta or something like that. Be your own self. If you're comfortable with 3 inches, 3 inches. If you're comfortable with 5, 6, be yourself, right?
Because if you start doing this, if you start measuring things and start working around, you will not be happy and you will not be comfortable also. See, because you might be comfortable with 6, but others may not be. Correct. So if I say 6 to you, people will panic. Ye kya ho gaya? I'm comfortable only with 2. Right? Correct. So my suggestion is, fashion is be yourself. Makeup is be yourself. Jewelry is be yourself. Be comfortable. Being comfortable is fashion. Don't try to imitate any artist, because you yourself are an individual celebrity. Be in your own zone, be in your own region, and be your own stylist. That's right? correct. Yeah, and also I want to ask one more question is, right. Apart from the nude shades and the black heels, is it okay if we carry like an extra pair just in case? Like unicorn one, which is like goes in all the possible gown colors. So which color is this? Transparent, gold. In addition to beige and black, what do you want to carry? It's unicorn. Okay. I don't have it currently. No worries. But it's a unicorn color, so it's like a shiny thing, and it goes with all the color. See, if your baggage permits, get it. More the merrier. Because anyway, I remember you telling us to carry a small bag, so I had practiced packing. Everything fit in that. So I still have place for like one more heel. Carry it. Just pack smartly and travel smartly. Yeah. Okay. Thank you so much. Most welcome. Yeah, Tejaswini ji. Mic is out. Mic. My doubt is about the specs. Do we have to remove the specs or lenses? Are you using lenses? No, sir. See, I'll tell you. Generally, fashion show ka thumb rule hai. Specs for a fashion event or a pageant or a celebrity show, generally people do not wear specs. They use lenses. Generally. Okay, sir. Now, if you do not have lenses, if you are not comfortable with lenses, then do you have very high powered numbers? Yes, sir. Then I think there is no option for us. You will have to wear what you have. Right? So feel comfortable. मैं वापस repeat कर रहा हूँ. जो आप करोगे वो style बनेगा. Okay, sir. So specs is fine, no, sir. See, actually, we don't use specs on stage. मैंने किसी को specs के साथ stage ऊपर देखा नहीं है. मैं specs पे जब भी stage पे जाता हूँ, I remove my specs, but mine is not a very high powered number. Right? Or the option is to use lenses in case you are comfortable, in case you have a comfortable with them. But don't buy something and try to experiment at the last moment. Okay, sir. Last moment में कुछ भी चीज खरीद के experiment मत करना. अगर कर पाओ तो आज से practice करोगे तो ठीक है. वरना उस दिन don't try to wear lenses and take it out and all. It's going to be a hassle for you. Yeah. So if you don't have any options, then you have to wear specs on. Otherwise, you will not see anything. There'll be a lot of lights. There'll be a lot of jazz happening. So we don't want you to trip and fall. But if possible, try and avoid specs. If you can get lenses on, it'll be welcome. Okay, sir. Right. And one more question is, and the whole event goes on the evening only, no, sir? Yeah. That too, Kirti ji and all are going to share the schedule with you. So, but mostly events do happen in the evening, of course. Okay, sir. Right. Actually, all the 5 days are eventful. The moment you land, the moment you take off from your house, the event starts. Okay. Right. So it's a 24-hour event for all of us. Right? Okay, yeah. Neetu ji, boliye. Yes, sir. Good evening. Good evening. Sir, I wanted to ask, like the flight ticket and the transport will be provided by you, or do we have to manage? Okay, so hi Neetu. I will take that question up. The flight tickets and total travel will be managed by you, and I'll ask the team to get back to you with these details. Okay, I'll ask your account manager to get back to you. Thank you. Neetu ji, that was very tough for me to answer that question. So I had to pass it on to the ace and the champion team member, Kirti ji. So I think she has solved your query. Yes, sir. Glory, over to you. Very good evening, sir. Good evening. Sir, I have a question that there is 2 songs. That one is Punjabi and then Western song. Then the other one is was saying that they are releasing right now. So which song we have to practice on? So just little confused. I think all the songs are good. You keep a backup of both. There's no harm, right? Yeah. No harm rehearsing, right? Go fully prepared. Don't have options. I'll do 1, I'll do 2. Go fully prepared. I was confused, sir. Which one? That's one. Don't be confused. Be crystal clear in your thoughts and views. If you have 2, rehearse on both. If you have 1, rehearse on 1. So be fully prepared. Right? Okay. So Rani, over to you, Rani. Rani, aap bataiye. Rani Shah.
Am I audible? हाँ जी. हाँ बोलिए. हेलो सर. हेलो. जी मेरा एक क्वेश्चन था कि जो हमें गाउन मिलेगा वहाँ रेनबो वॉक के लिए, तो वो हम घर नहीं ला सकते? वो तो सर ने बता दिया ना, राजेश जी ने अभी बता दिया कि द डिजाइनर्स बहुत स्वीट है हमारे, बहुत सपोर्टिव है, और वो चाहते हैं कि अगर आप खरीदना चाहो तो यू नो दे विल नॉट चार्ज द प्रॉफिट्स, बट मटेरियल प्लस स्टिचिंग का जो एक्चुअल चार्ज बनता होगा उसमें यू कैन परचेज इट फ्रॉम देम. आप खरीद पाओगे उनसे एक्चुअल चार्जेस पे, प्रॉफिट नहीं लेंगे वो लोग. अच्छा. राइट. हाँ ठीक है सर. वो थोड़ा सा है ना. आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझे. आपकी आवाज नहीं आ रही है. यू आर नॉट ऑडिएबल. नो यू आर नॉट ऑडिएबल. Lost the connection. Yeah, I think we can continue. Yeah. Acha, Jasmine, I think you raised your hand once again. So over to you. Boliye. Sorry sir, I'm taking so long. No worries. I'm here for you all. Okay. Actually sir, मुझे डांस के बारे में पूछना था. जो रील्स हम बनाने वाले हैं सोशल मीडिया के लिए, वो तो मैं समझ गई कि खुद का कोरियोग्राफी है. जो स्टेज पे वहाँ पे परफॉर्म करने के, वो भी हमें कोरियोग्राफ करना है अपने लिए. थोड़ा मेरे को कंफ्यूजन था उसमें. सी डांस ऐसी चीज है कि अगर आपको स्टेज पे परफॉर्म करना है तो आई थिंक यू विल हैव टू कोरियोग्राफ, बिकॉज़ इट कैन नॉट बी डन विद इन 1 hour or 2 hours. Dance is something that you need to practice well in advance, right? It cannot be done on prompto. Even if I choreograph you, you know, या कोई भी करे, you know, I mean, even if someone is teaching you, एक दिन में डांस कोरियोग्राफ नहीं होता. It takes time. Practice takes time. So I think you will have to get ready with whatever you wish to do. सर वो ग्रुप में होगा जो डांस हम का बात कर रहे हैं, जो स्टेज पे. We are trying to work on that. So Kirti ji, as she said, she is going to share a schedule. तो वो schedule group में तो फिर coordinate ही नहीं होगा. कैसे कोई कौन से steps कर रहे हैं? तो Kirti ji, you know, let us send a schedule and we will work on that accordingly with you. Okay. Right? And so one more thing. Actually, जो मैं stilettos के बारे में पूछ रही थी, I'm already having that. I want to show. Is it appropriate or not? Can you just नजर नहीं आ रहा मुझे. Okay, I'll send you on social media if you allow me. भेज दो. Tejaswini ji, back to you. Thank you, sir. Yes, sir. And my question is, are the dresses provided by you, or I have to get it? I am not providing anything, frankly. The gown, the crowning gown is going to be provided by the designers, and you have to carry your own clothes for the balance part of the day. You know what you wear while traveling. That's a formal event is formal. It's a formal event, right? It's a very high-end corporate prestigious event. So वो तो कपड़े आप ही के होंगे. जो crowning के कपड़े हैं वो organizers के designers आपको देने वाले हैं. Okay, and just other clothes are just normal and casual. Normal means, you know, whatever makes you feel comfortable and whatever looks good look good. You know, आप अच्छे लगने चाहिए. Basically, event आपके लिए हो रही है, so you should look good, right? Yeah. Okay. I don't know how to spell this. Ayantini? Tell me. Hi, sir. How are you? Very good. How are you? I'm fine. I'm excited also. Super excited. Boliye. Yeah, super excited. So, sir, I wanted to ask, like, won't we have the question answer round or the rounds where the final, the winners will be selected? See, mainly your judging has been done already, right? What Kirti ji just mentioned. Aapka judging ho chuka hai. This is a crowning ceremony, right? So technically, what matters is how you dress up, how you walk, how you enter, how you carry yourself for 1, 2, 3 or 5 days, right? And you are being crowned. So abhi yahan Q&A I don't think will happen. Okay. Right? But again, always be prepared. You know, if I am free, if I ask you something, you should be able to answer what, you know, I expect. So you should be on your guard. Don't let your guard down, right? Sara ji, welcome. Sara ji. Utsav, we might have to, you know, interrupt this because we're running short on time and we have to give some more guidelines. So I think I would request Jaya to take over and talk about the profile ranking and how important it is to keep your social medias in a way. So I would request all of you to lower your hands right now. So I just have one question. Sara, later, please let Jaya take over. Jaya, over to you. Thank you. I know your questions are a lot of questions you have, so keep that in your mind. We'll be answering, we'll be sharing the schedule with you and everything. Don't worry, we are there for you. You have one assigned account manager. You can contact them as well if your query is not answered here. All right, sorted with that. All right, so let's talk about your social media first. Okay, what you have to do now. You are winners. You are representing FCR at every platform.
So in your Instagram, in your Facebook, there is an option of where you work at or where are you working with in Facebook. Okay, so there you working with FCR, please tag FCR's page and on Facebook, and आप winner है किसी city से अपने bio में mention कीजिए उसे, and then वहां से Instagram का link भी आप copy paste कर सकते हैं. Okay. So when you are representing FCR, you will be representing not just on FCR platform, but all other platforms as well. All right. Am I clear with that? Okay. Moving on to another thing. आप सभी लोग काफी क्लियर है, जैसे कि हैरी आपको ऑडिशन से बताती है ये अबाउट योर यूनिक आइडेंटिटी, राइट? सो टॉकिंग अबाउट दिस यूनिक आइडेंटिटी, आपकी एफसीआर प्रोफाइल है जो कि गूगल पे रैंक करती है, राइट? उसमें आपकी पिक्चर्स आपको अपडेट करनी है. करंटली I'll just share the screen once. For example, Harry, can you share the screen I've shared with you? Can you try? Just give me a minute, just a minute. Yeah, so Harry will be sharing the screen with you. आपको सबको पता है. Like I'll share this example. Naomi अपन Google पे search करते हैं. Naomi की pictures जो है वो Google पे नहीं हो रही है because she has not uploaded, or there might be some reason कि वो Google crawl नहीं कर पा रहा है, right? So being a celebrity, आपका सिर्फ नाम important नहीं है. You know that your pictures should also crawl over Google. So make sure you put your best pictures on your FCR profile, and अभी आप update कर दीजिए. अगर नहीं possible होता है आपके end से, तो definitely team will be updating after the ceremony. But before that, because the crawling can start earlier, 10 days, 12 days before. So that's why I'm saying please update that. So like if you search Neha Barwase on Google, आप नेहा का चेक करेंगे, just see on the screen, उनका पूरा पिक्चर्स जो है वो गूगल पे फर्स्ट नंबर पे नेहा बरवासे के नाम से फर्स्ट पूरी प्रोफाइल उनकी है. So that's how it will be done. Make sure you pick, you put your best pictures on FCR profile, because apart from your name, your pictures will also be ranking over Google as a celebrity. So I hope you understand this point, right? Am I clear with everything? जया प्लीज एक पॉइंट और क्लियर करो कि yes, जो प्रोफाइल पिक्चर है वहां पे आफ्टर विनर की क्राउनिंग के बाद तो इनकी मेन प्रोफाइल पिक्चर वो हो जाएगी, बट राइट नाउ जो सैश या सर्टिफिकेट है वो वहां पे अपलोड जरूर करें प्रोफाइल पिक्चर पे, जिससे गूगल उसको इंस्टेंटली क्रोल कर पाएगा और ऑल इमेजेस के अंदर इनकी सबकी प्रोफाइल मेंशन होगी. Of course. So जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, you have to put your best pictures, but apart from your best picture, make sure कि आपको जो सर्टिफिकेट इन सैश मिले हैं उसके पिक्चर्स भी अपडेट हो, बिकॉज आप विनर है, आप पार्टिसिपेंट है कहीं से भी, सिटी विनर, स्टेट विनर, जो भी आपकी पोजीशन है, उसकी एक आइडेंटिटी आपकी एफसीआर प्रोफाइल पे होनी चाहिए. आई होप आई एम क्लियर विद दैट, राइट? And if you are facing any kind of errors, do share your pictures with me. I'll be ready to help you out, guys. All right, and soon we'll be starting with your banners also. जिन लोगों ने अपने I am coming के videos नहीं भेजे, please make sure you share your videos within 2 to 3 days finally, okay? All right, guys. Also, adding to the point, the portfolio pictures जो आप shoot करोगे वो बहुत ही important role play करने वाले हैं, because these pictures are going to get uploaded on your profile. आप उन्हें upload करोगे. So अभी के लिए make sure जो आपकी profile picture है वो आपके sash के साथ हो in a very very presentable manner. Not only FCR, even your Instagram and social media details could be there. You could proudly write there in your bio team FCR, because now you are one of us. And adding to the same point, what remains is ये जो portfolio pictures हैं ये आपकी profile में जाएंगी, and ये इसीलिए important है because you will be ranked as a celebrity on our website, जैसे कि जया ने already showcase किया था screen पे. So ये celebrity ranking आपको ensure करेगी that आपको अपने city से अपने state पे invitations आएंगे as celebrity guest, special guest, guest of honor, and that is how the whole management is going to work. So ये portfolio shoot बहुत important है, adding to the factor again that you have to carry really light dresses but interesting ones, ताकि आप अपना portfolio shoot best बना सकें. And I think now over to you, sir. अगर कोई point missing है तो आप वो बता दीजिए please. Thank you, Harry. शैलजा आज इस सेशन में है हरी? सर हैं, but I think वो travel. जी, I'm very much there. नहीं, I'm there right from start. शैलजा, ये अनाउंसमेंट मैं आपके सामने इसलिए करना चाहता था कि एक बहुत ही मेजर पॉइंट मैंने आज ही क्लियर किया है
कि जैसे मैराथन होती है, मैराथन ने अपने अपने नए रिकॉर्ड्स बनाए हैं, वैसे हम चाहते हैं कि वहां पे 15 मिनट का समय निकाल के जी सूर्य नमस्कार, कितने विनर्स ने 1 टाइम सूर्य नमस्कार की प्रैक्टिस की, ये जिम्मेदारी आपके लिए दी जाएगी। ये कैसा रहेगा आप सभी का एक्सपीरियंस कि एक साथ 30 या 40 या 50 कैंडिडेट जो विनर हैं, ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड की तरह जाएगा। इसका मैसेज रील पे कि ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जा रहा है कि इतनी सारी वुमेन्स, इतनी सारी गर्ल्स, ब्यूटी पीजेंट होल्डर, क्राउन होल्डर एक साथ सूर्य नमस्कार कर पा रही है। ओके कैसा फील करेंगे आप सभी इसको अगर आप ऐसा कर पाएंगे? ये हमारे देश की संस्कृति को भी आगे लेके जाएगा। तो शैलजा, आई होप कि ये सारा कुछ हैंडल आप कर लेंगे। इनको एक ट्रेनिंग या एक सेशन कोई भी या एक रिकॉर्डिंग बना करके कि सूर्य नमस्कार फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कितने मिनट के अंदर कंप्लीट करना है, एंड सब कैसे उसको एक साथ निभा पाए, जिससे कि वो जो रील या जो शूट बनेगा वो बिल्कुल परफेक्टली पूरे इंडिया में हर जगह पे छा जाए। ठीक है, तो उन्होंने ये वीडियोस अपने रेडी करके आपको सेंड करने हैं, राइट? नहीं 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 नहीं, आपको एक वीडियो बना करके सबके पास पहुंचाना है, और वहां होटल में, मैरियट में ये सब एक साथ सूर्य नमस्कार करेंगे, जितने विनर्स वहां पे एक साथ कर सकते हैं। ओके ओके, डन डन डन। ओके डन। हैरी प्लीज थोड़ा एक्सप्लेन कर दो ना, मैं बोलना थोड़ा कम जानता हूँ, इसलिए क्या मालूम कुछ समझ नहीं पाए हो, आप समझा दो एक बार। नहीं नहीं सर, आपकी बात सर, आप तो प्रो हो गए हो, मतलब मेरी अब जरूरत नहीं लगती है मुझे इस टीम के साथ, आप डायरेक्ट बात कर रहे हो। सो आई थिंक द पार्टिसिपेंट्स हैव अंडरस्टूड व्हाट यू। हैरी जी, अभी आपकी इतनी उम्र नहीं कि अब आपकी जरूरत ना पड़े, अभी आपकी उम्र बहुत बाकी है, अभी आपकी जरूरत बहुत है। फॉरएवर को नहीं, पूरी दुनिया को जरूरत है अब तो। Anyways, I think सूर्य नमस्कार वाला जो पॉइंट है वो आप लोगों को समझ आ ही गया होगा what sir is trying to say. So Shelza will be sharing her video which will be sent to you, and we will be doing it live so that we can create different records and you guys can get different opportunities, because this is not just a one-time deal. This is not just about one thing. We are going to explore every field that comes our way because we are a community at the end of the day. So sir, over to you. Back again. आप ही से सुनना चाहेंगे सर आगे की बात। तो सभी को ये चीज पता है कि फॉरएवर मिस इंडिया एंड मिसेस इंडिया के जो पावर्ड बाय है ब्रांड, वो कौन सा है? क्या आइडिया है किसी को? ओ नम्रता जी, यस बताइए नम्रता, पहले आप बताइए। आवाज ही नहीं आ रही आपकी तो नम्रता। फॉरएवर लीव्स। फॉरएवर लीव्स। आप सबके लिए एक प्लान रखा गया है कि आप जैसे ही विनर बन रहे हैं या बनने वाले हैं, आप डायरेक्टली फोटोशूट, फॉरएवर लीव्स के प्रोडक्ट का फोटोशूट एंड वीडियो बाइट्स के ऊपर काम करेंगे इंस्टेंटली। ये आपकी मार्केट वैल्यू बहुत तेजी से ग्रोथ पे लेके जाएगी। फॉरएवर लीव्स एफएमसीजी, परफ्यूम्स एंड कुछ नए यूनिक कॉन्सेप्ट को लेकर के एलोवेरा के प्रोडक्ट सारे के सारे वहां पर है, जो आपको ऑलरेडी 5000 रुपीज से ऊपर के सभी कैंडिडेट्स को गिफ्ट हैम्पर्स भी दे रही है। तो ये शूट्स आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि आप जब वापस से विनर बन के अपनी स्टेट या सिटी में जब जाते हैं तो ऑलरेडी अब आपको कोई भी शूट के लिए ट्रायल बेसिस पे नहीं बोलेगा, आपको डायरेक्टली पेड शूट्स के लिए बोलेगा, राइट? तो ये शूट्स अब आपको कैसे मैनेज करने हैं ये आप लोगों की जिम्मेदारी है। एंड फॉरएवर लीव्स के साथ में आपको ऑलरेडी जो सेकंड क्राउन होल्डर होंगे उनको पार्टनरशिप भी दी जा रही है। ये आइडिया है आपको किसी को कि एक पार्टनरशिप ऑफर है? वेरी गुड। नम्रता प्लीज एक्सप्लेन करो। फॉरएवर का जो ग्रुप है ये पावर्ड बाय फॉरएवर लीव्स का है, और इसके साथ कुछ एडेड एडवांटेजेस हैं, जैसे कि जो भी प्रोडक्ट्स फॉरएवर लीव्स लॉन्च करेंगे तो उसके सारा गिफ्ट हैम्पर्स हम सभी पार्टिसिपेंट्स को दिया जा रहा है, एवरीबॉडी। एंड उसके साथ कुछ जो भी लोग दो क्राउन विन कर चुके हैं ऑलरेडी, तो उनके साथ कुछ बिजनेस का अपॉर्चुनिटी भी है जो आप सभी को पता होगा या बताया जाएगा विद टाइम। प्लीज थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो, तुम्हें आइडिया है? So I hope अभी तक आपकी सभी लोगों से अपने अकाउंट मैनेजर से क्लैरिटी हो गई है। If there is no clarity, I'll again tell you there is a business opportunity for people who are becoming a crown holder again at a state level. So for these people, Forever Leaves is giving you a partnership.
So there will be a certain amount of partnership, whether it is 10%, 20%, ये आपको clarity मिलेगी with your marketing strategies, with your value of the brand. आपको उस according opportunities मिलेगी to earn like which which we have said like 20K to 1.2K के आसपास तक आप monthly earn कर सकते हैं. प्लीज मैं रोक ही देता हूँ, मैं हिंदी में बोल देता हूँ क्योंकि मुझे तुम बोल रही हो इंग्लिश में समझ ही नहीं आता. सर इन सबको समझ आ रहा है. मैं मुझे समझ नहीं आया ना, मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा वरना. सर फिर आप ज्यादा अच्छे से समझा पाएंगे. एक्चुअली में फॉरएवर लीव्स आपको जो सेकंड क्राउन होल्डर है, 2 क्राउन आज लिए हैं चाहे नेक्स्ट ईयर लेंगे, उनके लिए सिर्फ और सिर्फ राइट नाउ 2021 के अंदर एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है, जो अपॉर्चुनिटी आपको डायरेक्टली फॉरएवर लीव्स का पार्टनर बना रहा है. इट मींस कि आप फॉरएवर लीव्स के ब्रांड के ऑलरेडी पार्टनर हैं. जहां आप कोई एम्प्लॉय या मार्केटिंग स्ट्रेटेजी करने वाले लोग नहीं हैं, आप डायरेक्टली पार्टनर हैं. और ये पार्टनरशिप आपको केवल आपके शहर या आपके स्टेट से नहीं दी गई है, ये पूरे वर्ल्ड के लिए आपको लिंक दिया गया है. एग्जाम्पल के तौर पे इसकी पूरी ट्रेनिंग भी दी जाएगी, बट एग्जाम्पल है जैसे नम्रता का नाम नम्रता है, राइट, namrita/foreverleaves.in. इट मीन्स कि नम्रता अब फॉरएवर लीव्स की पार्टनर है. ये वेबसाइट अब सिर्फ नम्रता की है, इसका और कोई मालिक नहीं रहा. बट इसमें नम्रता को बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करना, बिकॉज नम्रता अगर 2 क्राउन होल्डर है तो ये 15 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट कंपनी नम्रता पे करेगी. एंड नम्रता इस बिजनेस को ऑलरेडी अपने तरीके से उसके फैमिली मेंबर्स को या खुद को मेंटेन करके चला सकती है पूरी जिंदगी, जिससे वो अर्न कर सकती है मिनिमम 20,000 से लेकर के लाख, 2 लाख, 3 लाख, वो जितना बड़ा अपना एम्पायर खड़ा करना चाहे वो कर सकती है. फॉरएवर लीव्स की जो कैटेगरीज है उसमें कंप्लीट एफएमसीजी प्रोडक्ट्स, क्लोथिंग, कॉस्मेटिक रिलीज हो रहे हैं, जो कॉस्मेटिक में बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट्स आपको 17 को वहां देखने को मिलेंगे. और इसके अलावा माउथ फ्रेशनर्स की रेंज बहुत लंबी है, जो टोटली मैन्युफैक्चरिंग फॉरएवर लीव्स की है, यानी कि एलिगेंट एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड की है. ये अपॉर्चुनिटी सिर्फ सेकंड क्राउन होल्डर को दी जा रही है और ये इसी साल के लिए दी जा रही है. तो ये शॉर्ट में हिंदी में मैंने समझा दिया. आई थिंक जया आप तो क्लियर हो गया होगा, इंग्लिश थोड़ी सी आती नहीं है. सर सबको क्लियर हो गया. वेरी गुड. अगर किसी का कोई सवाल है तो प्लीज. ऑलमोस्ट सब क्लियर है. ओके जया, तो अब तो अगर इनके और कोई सवाल. यस सर, ये साल तो ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, तो आप क्या 2022 के बारे में बोल रहे थे? नहीं, 2022 में तो नेक्स्ट शो आ जाएगा, मिस इंडिया, मिस यूनिवर्स, मिस एशिया एंड मिस वर्ल्ड. नहीं, पार्टनरशिप का जो आप बोल रहे हो कि इस साल अर्थ ये है कि जो अभी 2 क्राउन होल्डर हैं उनके पेपर, डॉक्यूमेंट्स या आगे की पॉलिसीज, ट्रेनिंग्स, वो सब 2022 में होगी, क्योंकि ये साल तो खत्म हो रहा है जैसा आपने बताया. मुझे भी अभी पता पड़ा वैसे तो, बट मैं तो सोच रहा था और लंबा खिंच जाएगा, बट अभी आइडिया हो गया. तो इसलिए 2022 में आपके पेपर्स कंप्लीट होंगे, यानी कि जनवरी में आफ्टर शो. ट्रेनिंग्स आपकी पहले से स्टार्ट कर दी जाएगी, कोशिश करेंगे. बट क्या होगा कि इतना बड़ा इवेंट पूरी टीम हैंडल कर रही है, तो मुझे लगता है शायद सब लोग छुट्टियों पे चले जाएंगे 2-4-5 दिन के लिए. आप लोग भी आराम करेंगे. आप लोगों को तो खैर कई लोग गेस्ट के तौर पे बुलाएंगे, तो डिनर्स पे जाना शुरू हो जाएगा आपका. हम लोग तो वापस से घर पे जाकर के नॉर्मल खाना खाने लग जाएंगे. अब आप लोग क्या है, अलग अलग जगहों पे जाकर के अलग अलग तरीके से डिनर करेंगे. सेलिब्रिटी जो बन चुके होंगे सबके सामने, हमारे सामने अभी बन चुके हैं, बाकी पब्लिकली सबके सामने आप अनाउंस हो चुके होंगे 20 तारीख को लास्ट, यानी कि 22 से तो कवरेज शुरू हो जाएगी आपकी पूरे इंडिया में. राइट अंजलि? ओके डन. तो जया, हैरी प्लीज आगे कंटिन्यू करें. अभी जितने पॉइंट्स डिस्कस करने थे, जो अनाउंसमेंट्स थे, ऑलमोस्ट सारे हो चुके हैं. कोई भी पेंडेंसीज इसमें नहीं है. एंड लास्ट जो सूर्य नमस्कार की बात शैलजा जी से डिस्कस की थी एंड हैरी और जया ने क्लियर किया था, उसमें ड्रेस कोड एक ही रखना. एक ही ड्रेस कोड आपके शेड्यूल में चले जाएगा. सिंगल ड्रेस कोड रहेगा, चाहे वो जो भी ड्रेस का कलर होगा आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा. परफेक्ट है. तो अब आपके जो सवाल है आप पूछ सकते हैं. इसके बाद में अगर किसी को एस्ट्रोलॉजिकल नीड है, वैसे तो जरूरत नहीं है क्योंकि सब सेलिब्रिटी है, सब स्टार है, इसलिए किसी को जरूरत नहीं है. अच्छा रोशनी को है, तो बीच में थोड़ा सा गैप लेते हुए एक बार जैसे आप डिस्कस कर ले. अगर आपका और कोई रिलेटेड टू शो क्वेश्चंस हैं तो उसको क्लियर कर ले. देन उसके बाद में हम 10 मिनट, सिर्फ 10 मिनट या 15 मिनट के अंदर आपके एस्ट्रोलॉजिकल सवालों का जवाब दे देंगे. कोशिश पूरी है. ओके डन. परफेक्ट. ओके यस जया प्लीज.
Sir, I would like to take the leave from trainers. Thank you so much, Shelza, Utsav, and Sonu, Sakshi, for all these people for coming on board on such a short notice. The team is immensely grateful, and I'm sure that all the members are going to, very excited to see you all on board. Thank you so much. I shall take your leave. Have a great evening ahead. Thank you. There is one thing that I want to bring to your notice, Harry, while Utsav was mentioning regarding the preparations that goes behind for all the contestants. I just have one tip to give all the girls. उनको बोलिए, they're all listening to me. आप अपने साथ एक emergency kit जरूर लाइए. कभी आपका shoe bite होता है, तो आपके पास handy plast या कुछ होना चाहिए. Okay, you must have all sizes of safety pins. Yeah. Pins come to your rescue at the last minute. कुछ चीजें होती हैं जो आप सबने as an emergency kit जरूर लेके आनी है. सुई आपका you're coming by flight, so certainly you can't carry सुई धागा, but you must carry safety pins in your check-in baggages. ये जरूरी है. And there was another point. Now I'll tell you the next time because it slipped out of my mind too. So this is emergency in case if you have travel sickness or something. So peppermint and basic paracetamol, nothing fancy. That's all. Thank you, Harry. Thank you. Thank you so much, Shelza. Thank you so much, Sonu, Sakshi, and Smita for being here. And I appreciate you all. The team appreciates you all. Thank you so much. I'll take your leave and I shall see you really soon for another training session. Recording बंद कर दूं?